رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، عظمتوں کے گیت گاؤ، عظمتوں کے گیت گاؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا، میں ہوں سلمہ کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی بحالی ترجیح، وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی ہر قسم کی معاونت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ملک کے جنوبی حصوں میں دریاؤں سے ملحقہ علاقوں کے حوالے سے تیاری یقینی بنائی جائے، لوگوں کے بروقت انخلاء اور امدادی سرگرمیوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، تمام متعلقہ اداروں کی ریسکیو اور ریلیف کے لیے کارروائیاں قابل تحسین ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ تمام وسائل اور افرادی قوت ریسکیو ریلیف اور انخلاء میں مصروف، 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی بروقت نقل مکانی، 4100 سے زائد پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا، 2400 سے زائد میڈیکل کیمپس قائم، متاثرین کے لیے 6300 ٹن سے زائد امدادی سامان پہنچایا گیا۔ مانسون کا آخری سپیل ختم ہونے کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی ریلا وسطی اور جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا۔ ہیڈ پنجنت پر 10 سے 20 لاکھ کیوسک ریلے سے بچاؤ کی تیاری مکمل، 80% متاثرہ بجلی کا نظام بحال۔ وزیر اعظم کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ۔ پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ درود و سلام کی روح پرور محافل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفاقی دارالحکومت میں عالمی سیرت کانفرنس ہوگی۔ معروف علماء کرام، دانشور، محققین، سفیر، اراکین پارلیمنٹ، سول سوسائٹی اور نوجوان شرکت کریں گے۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی سیرت کانفرنسز ہوں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے تقاریب۔ وفاقی کابینہ کی 12 ربیع الاول پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی سفارش۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں رہنمائی کا سرچشمہ،
नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत ने जुल्मतों को नूर में बदला, इंसानियत को अदल, रहमत, मसावत और वहदत की नई राहें दिखाईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कौमी किरदार का हिस्सा बनाकर मुआशी और समाजी मसाइल का हल मुमकिन है। मोहब्बत, भाईचारे और अमन के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैगाम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। अपने मुल्क और कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। दिफाए वतन, मुसल्लह अफवाज और कौम का अज़्म, गाजियों और शहदा को कौम का सलाम। यौम दिफा और शहदा कल भरपूर मिली जोशो खरोश, कौमी जज्बे और पुरवकार अंदाज में मनाया जाएगा। मारका हक में बेनजीर फतह से यौम दिफा इंतहाई अहमियत का हामिल। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग न करने के आज़म की तजदीद की जाएगी। मादर वतन की हिफाजत के लिए पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना। The agreement signed in terms of US dollars between Chinese and Pakistani JV partners have touched $1.5 billion JV agreements, and MOUs signed between both Chinese and Pakistani business leaders. The value of MOU has touched $7 billion. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs. पाकिस्तान और चीन के दरमियान $8.5 अरब के मुआहदे सीपैक फेज 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर्स पर काम होगा। गवादर बंदरगाह भी जल्द फाल करने का फैसला, सरमायाकारी की राह में तमाम सुर्ख फीते दूर करेंगे। ज्वाइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग मील है। ज़राअत, बरकी गाड़ियों, शमसी तवानाई, पेट्रोकेमिकल समेत 21 मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तरक्की का लॉन्ग मार्च बीजिंग से शुरू होकर इस्लामाबाद में खत्म होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिली। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके हैं। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से सस्ती लेबर समेत तमाम सहूलियात में असर होंगी। पुख्ता आज़म और अनथक मेहनत से अपने अहदाफ जल्द हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। हर सिफारती फारम पर फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान गज़ा के अवाम के लिए इंसानी इमदाद की फ़राहमी जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर के मुशीर से गुफ्तगू। महमूद सिद्दीकी अल-हबाश का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मरियम नवाज ने शहर का फजाई जायजा लिया। रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरा अफराद से मुलाकात। मुतासरीन को 3 वक्त का खाना फराहम किया जाए, नुकसानात का इजाला किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 ने गुजरात में 200 से ज्यादा इंसानी जानें बचाई। वज़ीर आला मरियम नवाज की शानदार कारकर्दगी पर 1122 के अमले को शाबाश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में 7 से 9 सितंबर तक बारिशों का इम्कान। मरी, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिन्यूट, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद और सरगोदा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। भक्कर, लैया, मियांवाली, बहावलपुर और रहीम यार खान के निशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के शाना बशाना। सैलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद, दुआबा और आशिक चौक समेत दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। हजारों अफराद और मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल।
पुल रंगोबंद टूटने के बाद मुरम्मत कर दिया गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। हेड सिदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिंध के मुतादिद अजला में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्ठा, बदीन और सजावल के नशेबी इलाकों में 7 से 9 सितंबर के दौरान अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी नशेबी शहरी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की रिलीफ कैंप में मुकीम मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पाक फौज के जवानों से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत सूबाई हुकूमत मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए सख्त मेहनत कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह की अवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दरियाए सिंध में पानी कम हो रहा है, ताहम हमें 7 से 9 लाख क्यूसिक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुरु बैराज पर पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध। खैबर पख्तूनख्वा में भी 7 सितंबर से शदीद बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। शहरी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सैलाब मुतासरीन की हर तरह से मदद कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का भरपूर मुकाबला किया। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। सैलाब ज़दगान की बहाली तक उनके साथ हैं। विफाकी वजीर अमीर मुकाम का बनेर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। 'कौमी असम्बली में कोयटा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़े पर मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद फौलैन बलोच ने पेश की। दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। बलोचिस्तान का अमन और तरक्की तरजीह। लापता अफराद के नाम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। बलोचिस्तान का अमन किसी को सबोताज नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सियासी तौर पर भी मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी। मुल्क की मईशत के लिए एक और बेहतरीन दिन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स 1,54,000 की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,611 पॉइंट के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,54,277 पर बंद। 59 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान पर अंडा फेंकने का शर्मनाक वाकया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से ही निकला। मीडिया रिपोर्ट्स। पीटीआई में धड़ेबंदी और अंदरूनी लड़ाई इंतहा को छूने लगी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने वाकये को प्लांटेड करार दे दिया। पार्टी पर कब्जे के लिए रहनुमाओं के दरमियान महाजराई उरूज पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सात और 8 सितंबर के दरमियान रात पाकिस्तान में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में रात 10:30 बजे से 11:52 तक देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की यौम दिफाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। 1965 की जंग के हीरोज को शानदार खिराज अकीदत। यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से श्रीनगर और दीगर इलाकों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स चस्पा। पोस्टर्स में दर्ज तहरीर में जम्मू कश्मीर की भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी और इलाके पाकिस्तान के कश्मीरियों के गैर मुतसलसल अज़्म का यादा। गजा सिटी पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 400 से जायद जख्मी। शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल।
बमबारी में रिहायशी इलाके और बेघर फलस्तीनियों की खैमा बस्ती निशाने पर। मगरबी किनारे में सिहूनी आबादकारों के हमलों में 20 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेस का गजा सिटी के निस्फ हिस्से पर कब्जे का दावा। गजा की मौजूदा सूरत हाल नाकाबिले बयान है। यूनिसेफ। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज। पीटीवी स्पोर्ट्स पर एशिया कप के लिए माहिरीन का तगड़ा पैनल तश्कील। शुएब अख्तर, मिसबाउल हक, बाजिद खान, उमर गुल और शुएब मलिक अपनी माहिराना राय देंगे। ज़ैनब अब्बास मेजबानी करेंगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। तमाम मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज छठे मैच में अफगानिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं। यूएस ओपन टेनिस के फाइनल में इतवार को दिफाई चैंपियन बेलारूस की अरीना सबालेंका और अमेरिका की आमांडा अनीसिमोवा मद्दे मुकाबल। सेमीफाइनल्स में अमेरिका की जेसिका पेगोला और जापान की नाओमी ओसाका को शिकस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। की कार्रवाइयों के साथ मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि तमाम वसाइल और अफरादी कुव्वत रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला के लिए बरूए कार लाए जा रहे हैं। मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। शरका को आगाह किया गया कि दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी रैला इस वक्त वस्ती और जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। पंजत पर 10 से 12 लाख क्यूसेक रैले से बचाव की तैयारी मुकम्मल की गई है, जबकि सैलाबी रैले की असल मिकदार 6 लाख क्यूसेक के लगभग होगी, जो तवक्को से कम है। मुल्तान में इस वक्त इंतजामिया, पाक फौज और रेस्क्यू इदारे सैलाबी रैले को बगैर किसी बंद को तोड़े गुजारने की भरपूर कोशिश में मसरूफ अमल हैं। इजलास को बताया गया कि मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बिजली के मुतासरा निज़ाम में से 80% को बहाल किया जा चुका है, जबकि मुतासरा पुलों और शाहराहों को रवाबित की बहाली के लिए मरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद और माली नुकसानात के लिए माली मुआवनत की फराहमी तरजीही बुनियादों पर नादरा के जरिए मुकम्मल की जा रही है। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में एक मरतबा फिर तुग़यानी की सूरत हाल है, जिसके बायस ज़िली इंतजामिया, पाक फौज और दीगर महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। सैलाब के बारे में इतला देने वाले इदारे के मुताबिक दरिया चनाब में चनियोट के मुकाम पर पानी का बहाव 5,24,000 क्यूसिक है और यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक और कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसिक है। हेड त्रीमू पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसिक और पंजनत पर 3,10,000 क्यूसिक है। त्रीमू और पंजनत के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,12,000 क्यूसिक और रावी साइफन पर पानी का बहाव 1,14,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में बल्लोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,48,000 क्यूसिक और सदनाई में 1,19,000 क्यूसिक है। बल्लोकी और सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 3,11,000 क्यूसिक है और यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसिक और हेड इस्लाम पर 1,02,000 क्यूसिक है। PDMA ने पंजाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3,900 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हुए, जिनमें 38,92,000 से ज्यादा लोग मुतासर हुए। 18,39,000 शहरियों और 13,42,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में 415 रिलीफ कैंप्स और 466 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 398 वेटरनरी कैंप्स भी कायम किए गए हैं। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 49 हो गई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद वफा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज मुसलसल 10वें रोज़ भी सैलाब मुतासरीन के दरमियान रहीं। उन्होंने गुजरात के सैलाब ज़दा इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और जलालपुर जट्टा में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने कैंप में इमदादी सरगर्मियों, लाइव स्टॉक मोबाइल वैन और हेल्थ काउंटर पर अद्वियात की फ्राहमी का जायज़ा लिया। उन्हें बहाली के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि गुजरात के 95 मोज़ाजात और 23,000 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई, जिनके लिए 20 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इन रिलीफ कैंपों में इलाज, अद्वियात समेत तमाम ज़रूरी सहूलतें फ्राहम की जा रही हैं। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुतासरा इलाकों से 395 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल, जबकि 2200 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुझे ये बताओ कि टोटल इवैक्यूएशंस इन द एंटायर गुजरात डिस्ट्रिक्ट वो आपने बताया 2200 है? जी मैम, इसके अंदर रेस्क्यू बोट्स वाली भी शामिल है और इवैक्यूएशन जो वॉलंटरली जब हमने इलानात करवाए, क्योंकि मैडम जब अगर मराला का ब्रीच एक्टिवेट होता, अगर हमें ब्रीचिंग सेक्शन करना पड़ता तो वो 10 मौजे थे जो पूरे के पूरे डूब जाते। तो डीपीओ साहब हिमसेल्फ एंड आई वाज देयर इन पर्सन और हमने खुद उनको इवैक्यूएट करा। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनसे सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक और तहाइफ भी तकसीम किए। खाना मिल रहा है, पानी वानी पीने को मिल रहा है, सब कुछ, ये बच्चों को दूध मिल रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल इदारों के एहलकार कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला ने शानदार कारकर्दगी पर रेस्क्यू 1122 के अमले को शाबाश दी। बहुत अच्छा काम आपने किया, इतनी जिंदगियां बचाई, अल्लाह ताला कितना खुश हुआ होगा आपसे। जो इस वक्त मुसीबत में लोग हैं, आपने उनकी जिंदगियां बचाई, शाबाश, वेरी गुड। मुझे बहुत फख्र है आप पे। ये हमारा सैलाब खत्म हो जाए, आपको इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनकी मुकम्मल बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया है। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से शुमाइला जावेद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लाहौर में खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला ने मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने, बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने, सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने, बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इसके लिए शफाफ तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की, जिसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग भी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली पैकेज का खुद ऐलान करेंगी। घर तबाह होने की वजह से फौरी वापस न जाने वाले खानदानों के लिए हर जिला में मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग मार्की लगाने की हिदायत की गई, जहाँ साफ पानी, खाना और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। सर्दी की आमद के पेश नजर सैलाब मुतासरा खानदानों को हर जिला की मार्की में शिफ्ट किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला ने आबी गुजरगाहों से तजावुजात और आबादियाँ खत्म करने का फैसला, जबकि दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक किया। इजलास में सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला भी किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहुत सी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं। उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरा एजाज और जिम्मेदारी है। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लत गुनगुनाओ, रब्बे सल्लत गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। गोद में लेकर हलीमा सादिया ने यूं कहा, अज़मतों के गीत गाओ, अज़मतों के गीत गाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया जी, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया।
2025 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें विलादत बासादत का साल है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर हैं। देखते हैं इमरान मंसूर खान की रिपोर्ट। मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन हजूर सरवर कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम बाला से आलम इमका में जलवागर होने के मुबारक मौके पर शहर शहर करिया करिया रंगो नूर से दमक रहा है। फिजाएं दरूद व सलाम से मुअत्तर हैं। घर मसाजिद और इमारतें जगमगा रही हैं। आपने रियासत मदीना में वो कानून लोगों को दिया जिसमें इक्वल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड किया गया, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम। इस्लामी ताउन तंजीम ने रबीउल अव्वल साल 1447 हिजरी को नबी करीम की विलादत बासादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर रुकन मुल्कों के हवाले से खसूसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को खराज तहसीन पेश करने और आपकी सीरत तैयबा को उजागर करने की हिदायत की है। वजारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ से इस माह मुबारक में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है, जिसमें 50वीं बैनुल अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हो रहा है। 12 रबीउल अव्वल को मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले जाएंगे और महफिल दरूद सलाम का इनेकाद किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बर्दाश्त, मुसावात, अदल, अमानत, हया, दयानत, मुशावरत और खिदमत खल्क जैसे औसाफ अता करती हैं, जिनकी आज के पाकिस्तानी माशरे को अशद जरूरत है। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने जुल्मतों को नूर में बदल दिया और इंसानियत को अदल, रहमत, मसावत और वहदत की नई राहें दिखाईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक कामिल और हमजहत उसवा है। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट की करारदादों की रूह से रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें विलादत बासादत को मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाने का फैसला इस अमर की गवाही है कि हम बहैसियत कौम अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने दस्तूर, कानून और इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पुरआज़म हैं। उन्होंने कहा कि सीरत तैयबा हुकूमत, सियासत, अदल इंसाफ, मईशत, तजारत, माशरती अक़दार समेत हर दौर में हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, जदीद टेक्नोलॉजी से रवाबित में तेज़ी और फासले सिमट गए हैं, ऐसे में हमें अपनी नई नस्ल को खैर, इल्म और अमन की तरफ राग़िब करने के लिए इन्हीं हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें तालीमात नबवी पर अमल पैरा होते हुए मोहब्बत, भाईचारे और अमन के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने की तरकीब देना है। वतन अजीज़ को सीरत तैयबा की अमली ताबीर बनाना है। तासुब, फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और मुनाफरत की हर शक्ल को रद्द करते हुए भाईचारे, इसार और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का पायदार हल उसी वक्त मुमकिन है जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने कौमी किरदार का हिस्सा बनाएं। हमें इस अहद की तजदीद करनी है कि हम सब मुल्क को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी रसूलों पर इस्तवार करने के लिए पुरआज़म है। हमारी पॉलिसियों का मकसद मसावात और गुरबत का खात्मा और इल्मो तहकीक का फ़रोग़ है ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में एक इस्लामी फलाही रियासत बन सके। सदर आसिफ अली जरदारी ने 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत और पुरसईद दिन पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि यह तारीखी और यादगार मौका उम्मत मुसलमा के लिए न सिर्फ खुशी और अकीदत का बायस है, बल्कि अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों को तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने का अहद भी है। इस साल विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 बरस मुकम्मल होने की सआदत हमें यह पैगाम देती है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा आफाकी उसूलों, अदल, रहमत, उखुवत और अमन को अपने माशरती, सियासी और तहजीबी ढांचों में राइज करें। सदर ममलकत ने कहा कि इस तनाजुर में कौमी असम्बली और सेनेट ने मुत्तफ़क़ा करारदादों के जरिए इस तारीखी मौके की कौमी सतह पर यादगार तरीके से मनाने का फैसला किया है, जो पूरी कौम की नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का मज़हर है। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के 1500 साल मुकम्मल होने पर इस बरस को यादगारी साल करार देकर पूरी उम्मत को इस पैगाम रहमत के गिर्द यकजा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें यह सिखाती है कि अदल इंसाफ, रहम करम, अखुवत, मुसावात और
एहतराम इंसानियत एक साले मुआशरे की बुनियाद हैं। उम्मत मुसलमान और पाकिस्तान आज जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उनका हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। सदर ममलकत ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अपनाएं। हम देख रहे हैं कि वतन अजीज इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात और सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। यही मौका है जब हम सरकार दो आलम की सीरत तैयबा से सबक सीखते हुए अपने लोगों की खुले दिल से मदद करके उनकी बहाली को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। सदर ममलकत ने कहा कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। विफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत सदर पाकिस्तान को 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन की मुनासबत से कैदियों को मुख्तलिफ जराइम की सजाओं में 100 दिन की कमी की सिफारिश की है। ये सिफारिश सजाओं में कमी की स्पेशल रेमिशन पॉलिसी 2025 के तहत तजवीज की गई है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिश्ता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। रवां साल यौम दिफा शहदा ऑपरेशन मार के हक की बेनजीर फतह की वजह से पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहम है। 1965 को दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वालों ने 60 साल बाद भी दुश्मन को बता दिया कि तुम्हारा जंगी जुनून और 6 दहाइयों की असलहा खरीदारी हमारे अज़्म के सामने कुछ नहीं। तफसील से आगाह करेंगे राना शहजाद सलाम। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। 6 सितंबर मादरे वतन से यौम तजदीद अहद वफा है। 6 सितंबर 1965 पाक सरजमीन को मैली आंख से देखने वालों को सबक सिखाने का दिन है। 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम की हुब्बुल वतनी और मुसल्लह फौज की जानिसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान दौरान जंग अफवाज पाकिस्तान महाज पर और पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी रही। इसी अज़्म और हौसले ने भारत को मैदान जंग से भागने पर मजबूर कर दिया। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानियों और बहादुरी की लाजवाल दास्तानों से भरा है। बर्री, बहरी, फजाई हर महाज पर भारत ने मुंह की खाई। लाहौर जिमखाना में नाश्ता करने का ख्वाब देखने वालों को लाहौर की एक सड़क भी देखना नसीब न हुई। मेजर अजीज भट्टी शहीद और उन जैसे वतन के बहुत से बेटों ने अपने लहू से बहादुरी की जो तहरीर लिखी वो अनमिट और लाजवाल है। नहीं मिलता, तू लफ्ज़ी फिरे उधार उड़े, अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं। जो जंग शुरू तुम करोगे वो ख़त्म हम करेंगे। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वी आर रेडी
don't test it. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. ستمبر 65 کی 17 روزہ جنگ بھارت کے ماتھے پر شکست کا وہ سیاہ داغ ہے جسے بھارت کبھی نہیں مٹا سکتا. 6 ستمبر جیسے دن اور شہداء کی قربانیوں کا اعتراف نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ آزادی اور خود مختاری سب سے قیمتی چیز ہے اور ان کی حفاظت کرنے والے دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں جن کے ہم ہمیشہ مقروض رہیں گے. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان کو سفارتی محاذ پر اہم کامیابیاں. شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی. چینی قیادت سے ملاقات میں سی پیک 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز پر مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے درمیان $8.5 ارب کے معاہدے ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین کا جائزہ پیش کیا ہے. مریم ملک نے اپنی رپورٹ میں. پاکستان اور چین آزمودہ دوست اور تصویراتی شراکت دار ہیں. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پہلے مرحلے کے تحت ملک میں بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں $33 ارب کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے معاشی افق پر نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور چینی قیادت کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گوادر بندرگاہ کو فعال بنانے اور خصوصی اقتصادی زونز کی قیام پر تیزی سے کام کرنے پر اتفاق کیا. دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا آغاز تھے. بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان سب سے بڑی بزنس ٹو بزنس کانفرنس کا انعقاد اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کا نجی شعبہ ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری روابط کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. کانفرنس میں 900 کے قریب چین اور پاکستان کی ممتاز کمپنیوں نے شرکت کی، جس میں دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے درمیان $8.5 ارب کی مالیت کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے. Chinese and Pakistani JV partners have touched $1.5 billion JV agreements and MOUs signed between both Chinese and Pakistani business leaders. The value of MOU has touched $7 billion. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی. 3.5 ارب آبادی پر مشتمل یہ تنظیم 10 رکن ملکوں، 2 مبصر ملکوں اور 14 ڈائیلاگ پارٹنرز پر مشتمل ہے. سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کی توجہ عالمی معاہدوں کے احترام، بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا. SCO کے جاری اعلامیے میں بھی دہشت گردی کی تمام اقسام کو قابل مذمت قرار دینا پاکستان کے موقف کی تائید ہے. We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command, including state terrorism. سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں نے روس اور پاکستان کے درمیان ٹرانسپورٹ کوریڈور کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان، آذربائیجان کے صدر الہام الیوف، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور رکن ممالک کے رہنماؤں سے مثبت ماحول میں ملاقات نہ صرف پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا آئینہ دار ہے بلکہ مستقبل میں مضبوط بین الاقوامی تعلقات کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے. چین کے عوام کی مزاحمتی جنگ میں کامیابی کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سمیت 26 ملکوں کی قیادت اس شاندار تقریب میں شریک ہوئی. وکٹری پریڈ میں ایشیا کے مضبوط ترین لیڈرز ایک ساتھ کھڑے تھے. اس اہم تقریب میں بھارتی وزیر اعظم کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. وزیر اعظم نے تیانجن یونیورسٹی میں طلباء اور فیکلٹی سے خطاب کیا. تیانجن یونیورسٹی کا شمار چین کی قدیم درسگاہوں میں ہوتا ہے. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ہم درست ہر وقت بر وقت.
नाज़रीन, बीजिंग में पाकिस्तान के सफारत खाने और काउंसिल खानों ने SIFC, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वफाकी वजारतों और सूबों के ताउन से अहम बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की। एक्स पर अपने पैगाम में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 9 तरजीही शोबों में $8 अरब से ज़ायद मालियत के मुश्तरका मंसूबों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी, पाकिस्तानी मिशन और कॉन्सुलेट की काविशों को सराहा। इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान सरमाए के फ़रोग़ के लिए मरबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगा। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बहस समेटते हुए बताया कि शदीद बारिशों और सैलाब से अब तक 884 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 21 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। तफसील जानते हैं फैसल राव से। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि तमाम तरह हुकूमती मशीनरी इस वक्त सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने बताया कि जाँ बहक होने वालों के लिए 2 मिलियन की ग्रांट जारी की गई, जबकि शदीद जख्मियों को 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। डेथ्स जो हैं वो सर 884 हैं, लेकिन ये अभी अपडेट हो रहा है। 1181 लोग जो हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक वो इंजर्ड हैं जी। जो घर डैमेज हुए हैं 9292 हैं सर। 21 लाख लोग जो हैं सर वो इफ़ेक्ट हुए हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक थ्रू आउट पाकिस्तान। मरहूमीन हैं जो इसाफत की वजह से जान की बाजी हार गए। फैमिली की सपोर्ट के लिए 2 मिलियन की ग्रांट्स जो है वो जारी की गई सर। जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए सर 5 लाख और जो दीगर इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख था सर। जो रिलीफ और दीगर एक्टिविटीज़ में NDMA को 1.3 बिलियन जो है सर वो रिलीज़ किया गया है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काम कर रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है। दाखिला के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में जारी बलोच ख्वातीन के एहतजाज के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात पूरे करने के लिए तैयार है, ताहम अदालती अहकामात के बरखिलाफ कोई इकदाम नहीं उठा सकते। एहतजाज के बारे में जो लेजिस्लेशन इस हाउस ने की है और जो कोर्ट्स के हुक्म है, उसके बावजूद उन बच्चियों को वहाँ पर पिछले कई दिन से सिक्योरिटी और फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है। हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया का भी राब्ता है। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। वफाक जो है वो हमेशा अपने सूबों के साथ दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान हो या दूसरे मामलात हो, हम मुकम्मल उनके साथ खड़े हैं। कौमी असम्बली ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसा-ए-आम में दहशतगर्दी के हवाले से मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली। करारदाद पोलैन बलोच ने पेश की। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन की बहाली की कोशिशों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीफ की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसूर के इलाके तलवार पोस्ट पर सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंपों का दौरा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ, चौधरी मंजूर अहमद, हसन मुर्तजा और दीगर भी उनके हमरा थे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को इलाके में सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के कामों के बारे में ब्रीफ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुतासरीन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहुत नुकसान हुए हैं, ताहम वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में मुतासरीन की बहाली के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। रिलीफ और बहाली के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ है। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपका जो रेस्क्यू का कंपोनेंट है वो इस वक्त जारी है, और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम से दरख्वास्त करेंगे मुतासरा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए और बीज और खाद के लिए किसानों की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान पर किसानों की भरपूर मदद करने की जरूरत है। BISP के जरिए मुतासरीन की मदद करना होगी। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने पंजाब के अवाम के साथ देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। जो रिकंस्ट्रक्शन का स्टेज है उसमें भी हम चाहेंगे
कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि भारत इंसानियत भूल चुका है, पानी छोड़ने की बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, आलमी सतह पर भारत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए रेड क्रिसेंट को 1 करोड़ रुपए अतिया दिया गया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, अवामी नुमाइंदों और हुकूमती शख्सियात की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम सज्जाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ख़ुसूसी हिदायत पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, अवामी नुमाइंदों और हुकूमती शख्सियात की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों का सिलसिला जारी है, ताकि वहाँ जारी इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन की बहाली के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने बाबू साबू के करीब सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। उन्होंने मुतासरीन सैलाब के लिए लगाए गए इमदादी कैंप का भी दौरा किया और वहाँ मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने कहा है कि असेसमेंट भी करें नुकसान की और उसके मुताबिक इनका अजाला भी किया जाएगा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग ली। उन्होंने क्लिनिक ऑन बोर्ड पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात की और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दरिया चनाब पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। गुजरात में रिकॉर्ड बारिश और बरसाती पानी की मौजूदगी पर पंजाब के वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने DG वासा पंजाब को इकदामात मजीद तेज करने की हिदायत की। उन्होंने 24 घंटों में पानी की निकासी और मुस्तकबिल में पायदार मनसूबा बंदी की सिफारिशात के बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सैलाब से मुतासरा घर जल्द आबाद और स्कूल बहाल होंगे और खुशियाँ लौटेंगी। वजीर तालीम ने कहा कि मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करेंगे और मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी तौर पर नजरबंद पार्टी चेयरमैन शबीर अहमद शाह की दरखास्त से जमानत मुस्तरद किए जाने की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक DFP के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय अदलिया की जानिबदारी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो इंसाफ की फराहमी के बजाय सियासी बुनियादों पर फैसले कर रही है। उन्होंने कहा कि शबीर अहमद शाह को झूठे इल्जामात के तहत दायर मुकदमात में शदीद इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान ने शबीर शाह की तेजी से गिरती हुई सेहत पर सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो तमाम कश्मीरी सियासी नजरबंदों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हुए 1965 की जंग के उन हीरोज को शानदार खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से श्रीनगर और दीगर इलाकों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर वाले पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं। पोस्टर्स में दर्ज तहरीर में जम्मू कश्मीर की भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी और इल्हाक़ पाकिस्तान के कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब में मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी अक़ीदत और मोहब्बत महज अल्फाज की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तालीमात पर पूरी तरह से अमल पैरा होना चाहिए। उन्होंने ईद मिलादुन नबी की तातील की तारीख में रद्दोबदल करने पर काबिज भारतीय इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मारूफ दानिशवर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरकर्दा रहनुमा और कश्मीर मीडिया सर्विस के बानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख तजम्मुल इस्लाम को आज उनकी चौथी बरस पर जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी ग्रां कदर और बेमिसाल खिदमात पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जुनूब मशरकी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स पर एशिया कप के लिए माहिरीन का तगड़ा पैनल तश्कील दे दिया गया है। एशिया कप के दौरान शोएब अख्तर, मिसबाह हक, बाजिद खान अपनी माहिराना राय देंगे। उमर गुल और शोएब मलिक भी पीटीवी स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट पैनल में शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास मेज़बान की जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमों के दरमियान 19 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। एशिया कप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। 3 मुल्की T20 सीरीज के छठे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 171 रन का हदफ दिया है। शारजा में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। ओपनर्स इब्राहिम ज़दरान और रहमान लगरबाज ने टीम को 98 रन का आगाज दिया। इब्राहिम ज़दरान ने 48 और रहमान लगरबाज ने 40 रन स्कोर किए। करीम जन्नत 28 रन बना सके। गुलबदीन नाइब 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। UAE की जानिब से हैदर अली ने 2 विकेटें हासिल की। 3 मुल्की सीरीज का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।